Assalamualaikum everyone. I hope all of you doing great. I'm also doing good, Alhamdulillah. And in front of you with another good topic. आज बात करेंगे कुछ ऐसे tips and tricks के ऊपर that will make you a good parent. Parenting is a matter of great responsibility, and if you follow these tips and tricks, you are definitely going to be a good parent. So if you're interested, keep on watching. Parents are the one who we meet when we come to this world. What we will become in the future, that depends on the foundation that our parents lay in the childhood. So in fact, parenting is a matter of great responsibility. It's an endeavor which is tough. So here are certain tips that if parents incorporate in themselves, they can be called as good parents. First thing is that they need to get along with each other in all ups and downs of life. That means कि जब आप एक parent बनते हो तो from now onward आपको ये बात understand करनी है that you have to be with your partner in all the challenges that life will give you in order to have a good upbringing of your child. Because अगर आप बीच में कहीं डगमगाते हो तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो आपके बच्चों के ऊपर पड़ता है. सो इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम दैट इम्पैक्ट यू हैव टू बी विद ईच अदर, वेदर इट्स अप, वेदर इट्स डाउन, वेदर इट्स अ हाई टाइम और वेदर इट्स अ लो टाइम. Number 2, show more physical affection. That means अपने बच्चे को प्यार दीजिए. Give him more hugs because this physical affection will generate in him more confidence. उसकी self-esteem को बढ़ाएगा. He will be less aggressive. He will be less antisocial. So try to give him love and affection that he deserves. Number 3, give quality time to your child. दैट मीन्स कि 1-to-1 टाइम स्पेंड करें अपने बच्चे के साथ. हर बच्चे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है और उसके मुताबिक उसकी डिफरेंट नीड्स होती हैं. उन नीड्स को अंडरस्टैंड कीजिए. दैट टाइम कैन बी इन कुकिंग, इन स्पोर्ट्स, इन एजुकेशन, एनी एक्टिविटी दैट द चाइल्ड इज परफॉर्मिंग. Try to give your 100% in that particular activity that your child is performing. Number 4 is understanding your child. Every child wants to be heard. So take time out to listen to those concerns, those feelings, those thoughts of your child जो वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है. You are the one जो as a parent उसको सबसे बेहतर understand कर सकते हैं. And once you have understood your child, that will help you in better development of your child in the future. Number 5 is guidance and support. You need to guide your child, whether that be the matter of education, whether that be the matter of sports, or whether that be any activity that he or she is performing in the life. Because you need to tell him कि उसकी limits क्या हैं, उसकी boundaries क्या हैं, how he has to catch the opportunities that life will provide him, what he has to offer to the world, or what he has to catch from the world. You as a parent should be the best teacher for the child. And I have also mentioned in the previous videos as well कि जो पहले 7 साल होते हैं वो आपने अपने बच्चे के साथ पूरी तरह से स्पेंड करने हैं. because those are the years जब आप अपने बच्चे को जो भी समझा देंगे that will be tape recorded in his or her mind for the later period of his or her life. The next point is understanding and not confusing where to use discipline and where to use punishment. Basically, discipline क्या होता है? It is basically training your child to do better in the future. And punishment is the suffering for wrongdoing. So आपको understand करना है कि कहाँ पे आपने उसको discipline सिखाना है और कहाँ पे आपने उसको उसी discipline के अंदर punishment देनी है. You are the one who is going to form the boundaries for your child, and you're going to tell him how he has to make choices for the life, how he has to catch the opportunities that life is going to provide him. The next point is encouraging new things.
सी देयर आर चिल्ड्रन जो कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में खुश होते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी इन्वायरमेंट से लर्न करना चाहते हैं। द फर्स्ट 7 years ऑफ द चाइल्ड एट द वन जिसमें वो अपनी इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, ग्रैब कर रहा होता है। सो यू एज अ पेरेंट, आपकी ड्यूटी ये है कि आप उन्हें वो चीज़ें लर्न करने दें, टेल देम देयर बाउंड्रीज, देयर लिमिट्स, और उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए यू एज अ पेरेंट शुड बी देयर टफेस्ट बैकबोन जो कि उसको उन नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में उसकी हेल्प कर रहा हो। दिस विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड. डू नॉट unnecessarily snub the child whenever he or she is trying to learn new activities, new scenarios, new cues from the environment. Moving on, the next point is that how to socially interact. आपने अपने बच्चे को वो मैनर्स सिखाने हैं, वो एटिकेट सिखाने हैं जो उसने जब सोसाइटी में बाहर निकलना है तो उसने उन मैनर्स और एटिकेट्स को कैसे फॉलो करना है. हाउ ही हैज़ टू टॉक टू अदर पीपल, हाउ ही हैज़ टू इंटरैक्ट, उसने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, जब बात करनी है तो कैसे करनी है, उठना बैठना उसका कैसे होना चाहिए, उसने सोसाइटी में मूव ऑन कैसे करना है, स्कूल जब जाता है तो किन बातों का ख्याल रखना है. ये सारी की सारी सोशल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चे को समझानी है, टीच करनी है, ताकि वो एक अच्छा सिटीज़न बन के सोसाइटी में उभरे. Point number 10 is acknowledging your mistakes and doing an apology for it. एज अ पेरेंट हम ये समझते हैं कि हमसे कोई गलती हो नहीं सकती, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग. वी आर अ ह्यूमन बीइंग और हम में से किसी से भी गलती हो सकती है. इसलिए जब आपको ये रियलाइज़ हो कि आपने अपनी पेरेंटिंग में कोई भी गलती की है तो आपको चाहिए कि आप उस गलती को ना सिर्फ एक्सेप्ट करें बल्कि अपने बच्चे के सामने उसकी अपॉलॉजी भी करें, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, जिसमें ना सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट उसके सामने बढ़ेगी बल्कि वो आपकी पेरेंटिंग स्किल्स को और ज़्यादा एक्नॉलेज करेगा कि आपने ना सिर्फ अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया बल्कि वो जो एक बड़े छोटे का फैक्टर है उसको पीछे रखते हुए आपने एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव किया और ग्रोथ और डेवलपमेंट में इट्स गोइंग टू प्ले अ रियली पॉजिटिव रोल बोथ फॉर द चाइल्ड एंड द पेरेंट. नंबर 11 इज़ गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर चाइल्ड. कोशिश करें कि अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो काम करें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर चाइल्ड वांट्स टू डू द सेम विद यू, उसको अपने साथ लगाएं ताकि जब वो काम परफॉर्म करेगा तो एक तो उसको इंटरनल सेटिस्फैक्शन होगी, ठीक है, दूसरा आपके साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ही और शी विल बी एबल टू स्पेंड मोर टाइम विद यू. वो ना सिर्फ उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा बल्कि उसको एक रिस्पॉन्सिबल, एक क्रेडिबल और एक अकाउंटेबल सिटीजन बन के जो है वो लेटर ऑन इन फ्यूचर आपके सामने आएगा. पॉइंट नंबर 12 इज़ बी द रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड. आपका बच्चा आपके हर एक्ट को फॉलो कर रहा होता है और आप ये नहीं कह सकते आप कोई काम करें और अपने बच्चे को उसी काम को करने से रोकें. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू स्टडी इन द इवनिंग, यू शुड ऑल्सो बी नॉट वॉचिंग TV एट दैट टाइम. सो आप जो भी करते हैं आपका बच्चा उन तमाम चीज़ों को फॉलो करता है और आपको उसके सामने पहले एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है, एक रोल मॉडल बनना होता है, तब वो आपको उसी तरह से फॉलो करेगा. is that encouraging new paths. We as parents want कि हमारा बच्चा जो है कन्वेंशनल स्टाइल फॉलो करे. अगर वो कोई नई चीज़ फॉलो करना चाह रहा है, किसी नए गोल को अचीव करना चाह रहा है, तो आपका काम है कि आप उसमें उसको सपोर्ट करें. फॉर एग्जांपल अगर म्यूज़िक एक बच्चे की हॉबी है और वो उसको लेके चलना चाह रहा है, या फिर कोई और ऐसी हॉबी है जो कि कन्वेंशनल नहीं है, सो यू एज पेरेंट शुड सपोर्ट हिम इन दैट पर्टिकुलर हॉबी, बिकॉज वो उसका एक इनबॉर्न टैलेंट है. और अगर वो उसको लेके चलेगा, कीपिंग इन हिज माइंड हिज लिमिट्स, हिज बाउंड्रीज, वो आपने उसको डिफाइन करनी है. उसका जो एजुकेशनल करियर है वो आपने उसको डिफाइन करना है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ ही और शी वांट्स टू परस्यू दैट पर्टिकुलर गोल, तो आपको उसमें उसका जो है वो साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि उसको खामखा में स्नब करें. So this was all for today. Parenting, no doubt, is a tough endeavor, and you need to be really patient if you want a good upbringing of your child. So here were certain tips
जो कि आप फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ गुड पेरेंट. इफ़ यू हैव एनी अदर पॉइंट, प्लीज़ डू लेट मी know in the comment section below. Also, if you haven't subscribed to the channel yet, please go and subscribe. And if you like the content that is presented to you in this video, please hit the like button. Also, share it with your friends and family, and press the bell icon so that you do not miss out any update that comes from this channel. I'll catch you in the next video. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.